Well, the Prime Minister is in fact going to be speaking momentarily. We have live shots coming in at this point in time. We are going to be cutting across. The Prime Minister, of course, inaugurated the Seva Tirth, the new Prime Minister's office in Delhi, marking a shift for the first time since independence. The new building adorns the motto Nagriko Devo Bhava, which means citizens akin to God. This also marks a significant administrative change since earlier the PM's office and the two secretariat were at different locations. Now, Prime Minister has also inaugurated Kartavya Bhavan 1 and 2, which will accommodate several key ministries. The new buildings come with digital integrated offices, structured public interface zones and centralized reception facilities. The buildings have been designed in line with 4-star Griha standards and renewable energy systems, also making them ready for the future. Prime Minister has also taken significant decisions on day one in his new office, including the launch of PM Rahat scheme for cashless treatment up to rupees 1.5 lakh to accident victims and doubled the Lakhpati Didi target to 6 crores. All right. All right, Kalyani Shankar, political commentator and senior journalist with us on the broadcast as well. Kalyani ji, appreciate you being here with us and a very good evening to you. Good evening. Well, you know, the Prime Minister always felt that some of the legacy buildings that India was working out of were not suited to serve, the kind of aspirations India has and the kind of administrative challenges that India also has. This is indeed a new beginning for what we call as the Prime Minister's vision for Viksit Bharat. Yeah, our Prime Minister has always been fond of showing that India's own culture and things like that. And this building, the Prime Minister's office and the rest of the thing, is a continuation of what he had been doing in the other buildings also. So this is part of that actually, and it's a state of art. Everything is there in the building, and it's a brand new, and also it shows how far India has moved. It is a modernization of India also to that extent. So all these things will give a kind of pride to the nationalist people, and I think we are housing everything we have in these kind of buildings to show the people who come from abroad and also those who come from here. So that is a very important thing which he has done, and it's a very good thing that we have got a Seva Tirth. Ma'am, let's also talk about, the way the country was run from, the South Bloc and the North Bloc. There was definitely integration required. There were a number of offices, which were scattered all over the capital. How important do you think, the centralization means for the country as well as the smooth functioning of any government, not just the current one? Yeah, you're right. Because you see, in other countries, go to China for that matter, all the government offices and even the ministers are staying within that city. So those people who want to have some dealing with the government, all that they have to do is to go to that particular place, and then they will find out where to go, and then they'll get the work done. So as you rightly said, today, so many new buildings have come up, but they're all in different parts of the city, and they all house different ministries. So in olden days, actually, at least North Bloc, South Bloc, and then Shastri Bhavan, Krishi Bhavan, Rail Bhavan, Udyog Bhavan, all these things were in a separate thing in the same place. But now he plans to house everything together in one place so that it will be easier for the public also to access. Right. Gautam Mukherjee, senior journalist, is also with us on the broadcast. Gautam, if you can hear me. Yes, I can. All right. Well, how is the Seva Tirth, going to be an integral part of, the seamless execution of policies as well as rolling out schemes and running the nation's
considering the fact that there have been legacy buildings that India has been run out of. How do you think this is likely to make an impact? Well, it's a firm move from the past to the future. When North and South blocks were set up, the British administration consisted of a handful of people, 100 ICS officers, Viceroy's Council, very, very few important people were housed in North and South Block. When we became independent, many ministries, all they took care of was law and order and revenue. Revenue so that they could take as much of the money back to Britain as possible, and law and order to make sure that they could keep on doing it. And that was the British administration in simplicity. And with the Indian government coming in, we have to look after the whole country. Now, ministries have grown and blossomed over the years. That they were all over the place and hard to coordinate and so on was part of it. And also the famous red tape of Indian administration. We were not born to it administrators. We were babus in the British times. And after that, babus as in clerks. Now we call our bureaucrats babus, but they are highly educated and they pass the UPSC and so on. They're different. But they were all over the place, and files and red tape and so on. Now, this new Sevatit is a integrated sort of set of offices, integrated with IT, connectivity, video conferencing, conference rooms, everything up to the kind of requirement we will need between now and 47. I'm not saying that this is the last word, there may be more, but it is a giant leap forward and is to be welcomed. It is nothing to do with the imperial grandeur of the Raj, and that I understand North and South blocks will be converted into museums along with the old parliament, and that is very good for the general public. I have visited North Block several times, South Block occasionally. Massive rooms for the very important people and not much else. So you had partitions and cardboard enclosures and so on. It was a mess. Today, all that is done away with. I welcome it. It is a great effort. And I understand we're going to be demolishing a lot of the bhavans and rebuilding them as well. All part of where we are going, nothing to do with where we were. And Gautam, it's also important to understand that, there are new constituencies, there are new delimitations, there are, new leaders to be christened in terms of running the country. The first step was accommodating this scope in the parliament. Now, of course, the scope is also being done for the bureaucracy as well as the polity as well. How do you think these measures, because people want to know, Gautam, how is this directly going to impact them? What do you have to say? Well, in one word, efficiency. As far as parliamentarians go, the kind of behavior they've been exhibiting leaves much to be desired, at least as far as the opposition is concerned. It is high time that the government crack down on unruly behavior within parliament, and punishments are meted out, and people who are habitual offenders are excluded from parliament. Now, you can't make a parliament for 800 plus people and half of them are determined to be junglis. That is not representing the people. That is not spending the Indian people's money properly. That certainly needs doing. The bureaucrats, on the other hand, are quite willing to learn and change. And I think with all these facilities being provided in a centralized manner, they will perform much better. The high officials, the politicians of the government
I have every hope for. They are, in any case, quite disciplined, and they contribute much to the public. If you look at the kind of the India is unrecognizable in multiple ways. Look in any direction, and I think we're only going to put more speed and depth to it in the years to come. Okay, fair enough. Mr. Bipin Sharma is with us on the broadcast as well. Priya Sehgal, editorial director of NewsX, also joins us on the program. We are also, in fact, showing you live shots that are coming in. The Prime Minister is likely to speak momentarily. Priya, thank you for being here. Well, Gautam says that the number one benefit that citizens can enjoy as a result of this centralization effort is the fact that the bureaucracy and a number of pillars of democracy will be more efficient. How do you look at these infrastructure amplifications and changes? Well, Vineet, I really, I haven't, got an in-depth this insight into what, in terms of structuring, in terms of streamlining that this government is planning. But just by shifting offices, we are living in the age of really, technology. We don't really have to shift offices to be next to each other. Is that expense worth it? What have they achieved? I would really like to, get the some benefit of this is because, there is something in terms of the North and South. They were legacy buildings. Now you made them into museums. Is that, and this government's track record on delivering is a bit slow. So until they deliver and until they efficiently deliver, I think I will hold my thoughts on that. Yes, of course, name changing, Seva Teeth, all these are great names, Kartavya Path. But end of the day, we have to look at actually what are the deliverables and not just the labels and this grandstanding and event management. This is yet another event management. So I like to see what it delivers before I really come out in full praise for it, because I am a bit skeptical, Vineet, to put it mildly. Okay, all right. Bipin Sharma, senior journalist, is also with us on the program. Bipin, I'm just going to take a leaf out of what Priya said. We're in the age of Zoom and G Meets and whatnot. Does new infrastructure always spell out efficiency and better management, or do you think that the old was working just fine and this is an expense which could have been put elsewhere? I'm just paraphrasing what the previous panelists have said. How do you look at this? No, fair enough, Vineet. I mean, with due respect to the previous panelists, so she, of course, comes with her own vast experience. And, of course, you can't deny the fact that the thought needs to be more towards action and what is delivered on ground zero. But then definitely this, if you look at the other side of the coin, the fact that, Prime Minister, from the word go, he's a tough taskmaster and, he calls himself as a Pradhan Sevak. So I think that also we need to, give it to him, because reason being that, if he has rechristened this as Seva Teerth. So, Prime Minister is there, and Prime Minister is a tough Bipin, just hold on to that thought. In fact, the Prime Minister has started to speak. We're going to cut across. सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन
भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसराय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर
जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साथियों, इस समय 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। ये आवश्यक है कि विकसित भारत की हमारी कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, हमारे कार्यस्थलों, हमारी इमारतों में भी दिखाई दे, जहां से देश का संचालन होता है वो जगह प्रभावी भी होनी चाहिए और प्रेरणादायी भी होनी चाहिए। वो इम्प्रेसिव भी हो और इंस्पायरिंग भी हो। आज नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे बीच जगह बना रही है, लेकिन इन सुविधाओं के विस्तार के लिए, नए टूल्स के उपयोग के लिए पुरानी इमारतें नाकाफी पड़ रही है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। मैं समझता हूं इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की
अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वो युगे युगीन भारत म्यूजियम का ही हिस्सा होगी। वो इमारत देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगी। नई पीढ़ी के युवा जब वहां जाएंगे तो ऐतिहासिक लेगेसी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए, पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए, उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड, उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। साथियों, हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है, एक विजन है। ये हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ती है।
जिस जगह को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां न पर्याप्त सुविधाएं थी, न आम नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था। हमने उसे कर्तव्य पथ के रूप में विकसित किया। आज वही स्थान परिवारों, बच्चों, देश भर से आने वाले नागरिकों के लिए एक जीवंत सार्वजनिक स्थल बन चुका है। इसी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। लंबे समय तक हमारी राजधानी में अपने महान नायकों की स्मृति को इस रूप में स्थान नहीं मिला था। हमने यह तय किया कि देश की नई पीढ़ी राजधानी के केंद्र में अपने नायकों से प्रेरणा ले। राष्ट्रपति भवन परिसर में भी परिवर्तन किए गए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। जब पुरानी संसद के पास नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो हमने पुराने भवन को भुलाया नहीं। हमने उसे संविधान सदन के रूप में नई पहचान दी। जब अलग अलग मंत्रालयों को एक परिसर में लाया गया तो उन भवनों को कर्तव्य भवन का नाम दिया गया। नाम बदलने की ये पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही भारत की पहचान है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, शिव ज्ञान से जीव ज्ञान सेवा। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। यह भवन हमें हर क्षण याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय संस्कृति का यही विचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार का विजन है। इसलिए सेवा तीर्थ ये केवल एक नाम नहीं, ये एक संकल्प है। सेवा तीर्थ यानी नागरिक की सेवा से पवित्र हुआ स्थल, सेवा के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का स्थल। तीर्थ का अर्थ भी होता है तरति अनेन इति तीर्थ, अर्थात जो तारने की, पार करने की क्षमता रखे, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, वो तीर्थ है। आज भारत के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। हमें करोड़ों देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलानी है। हमें देश को
गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है और ये काम सेवा के सामर्थ्य से ही सिद्ध होगा। साथियों, आज जब भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई गाथा लिख रहा है, आज जब नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं, जब देश सैचुरेशन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में आप सबके काम की नई गति और आपका नया आत्मविश्वास देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमारी संस्कृति कहती है हर शुभ कार्य से पहले स्वस्ति वाचन, मंगल की कामना, शुभ का संकल्प, वेद का मंत्र हमें दिशा देता है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहें, यही इस भवन की आत्मा होनी चाहिए। भारत के महान लोकतंत्र में जनता के विचार ही हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षाएं हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे, तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे, तभी निर्णय प्रभावी होंगे। पिछले 11 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक नया मॉडल देखा है, एक ऐसा मॉडल जहां निर्णय का केंद्र भारत का नागरिक है। नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपको इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। मैं हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से, हर कर्मयोगी से कहना चाहता हूं, जब भी आप इस भवन में कदम रखें, पल भर के लिए रुक जाएं, कुछ क्षण ठहरे, अपने आप से पूछे, क्या आज का मेरा कार्य करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाएगा? यही आत्ममंथन इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। साथियों, हम यहां अधिकार दिखाने नहीं आए हैं,
हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं और हमने देखा है जब शासन सेवा भाव से चलता है तो परिणाम भी असाधारण होते हैं और तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं, तभी तो अर्थव्यवस्था नई गति पकड़ती है। साथियों, आज विकसित भारत 2047 सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, यह विश्व की निगाहों में भारत की प्रतिज्ञा है और इसलिए यहां बनने वाली हर नीति, यहां होने वाला हर निर्णय सेवा की निरंतर भावना से प्रेरित होना चाहिए और एक दिन जब आप सेवानिवृत्त होकर या स्थानांतरण के बाद इस भवन से विदा लेंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने आज के दिनों को गर्व के साथ याद करेंगे। तब आप स्वयं से कह सकेंगे कि हां, जितने दिन मैं सेवा तीर्थ में रहा, कर्तव्य भवन में रहा, हर दिन मैंने देश के नागरिकों की सेवा की, हर निर्णय राष्ट्र के हित में लिया। वह क्षण आपको सुकून देगा, वह क्षण आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगा, वह क्षण आपकी व्यक्तिगत पूंजी होगा और वही पूंजी आपके जीवन को गौरव से भर देगी। साथियों, महात्मा गांधी की भावना थी, कर्तव्य की बुनियाद पर ही अधिकार की भव्य इमारत का निर्माण होता है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती से टकरा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए ही कर्तव्य पर बहुत जोर दिया है और इसलिए हमें याद रखना है, कोटि कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है कर्तव्य। कर्तव्य आरंभ है, कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर समस्या का समाधान है कर्तव्य, विकसित भारत का विश्वास है कर्तव्य। कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ, सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागृत पथ है कर्तव्य। साथियों, कर्तव्य की इसी भावना से, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए हमें सेवा तीर्थ और नए बने भवनों में
कर्तव्य भाव से प्रवेश करना है। साथियों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक नई ऊंचाई की ओर, एक नए युग की ओर। आने वाले वर्षों में हमारी पहचान केवल अर्थव्यवस्था से नहीं होगी, हमारी पहचान होगी गवर्नेंस की गुणवत्ता से, नीतियों की स्पष्टता से और कर्मयोगियों की निष्ठा से। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में लिया गया हर निर्णय केवल एक फाइल का फैसला नहीं होगा, 2047 के विकसित भारत की दिशा तय करेगा। याद रखिए, 2047 का लक्ष्य सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो 140 करोड़ सपनों की समय सीमा है। इस यात्रा में हर संस्थान महत्वपूर्ण है, हर अधिकारी महत्वपूर्ण है, हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं सेवा तीर्थ संवेदनशील शासन का प्रतीक बने, नागरिक केंद्रीय व्यवस्था का रोल मॉडल बने। ऐसा स्थान जहां सत्ता नहीं, सेवा दिखे, जहां पद नहीं, प्रतिबद्धता दिखे, जहां अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व दिखे। मुझे पूरा विश्वास है, हमारा संकल्प इतिहास लिखेगा, हमारा परिश्रम पीढ़ियों को दिशा देगा। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आइए हम हर पल, हर क्षण का सही इस्तेमाल करें। हम राष्ट्र प्रथम की भावना से ऐसे पुण्य कार्य करें कि आने वाली शताब्दियां कहे, यही वह समय था जब भारत ने स्वयं के भाग्य को पुनः परिभाषित किया। यही वह समय था जब भारत ने अगले 1000 साल के उज्जवल भविष्य के लिए अपना मजबूत कदम नई ऊर्जा, नई गति के साथ उठाया था। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत आपके उद्बोधन के लिए हृदय से आभार मान्यवर। समय और स्थान की परिधि से परे अपने 140 करोड़ परिवारजनों से मुलाकात, संवाद, उनके कल्याण का अडिग संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी को सच्चा जननायक बनाता है। इसीलिए तो नागरिक देवो भव के उद्घोष से गूंजता प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ बन जाता है और हर कार्यालय कर्तव्य का बोध कराता है। पुनः बहुत बहुत आभार मान्यवर। वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहित के आदर्शों के अथक अनुपालक माननीय प्रधानमंत्री जी की कविता की वो पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। वो जो सामने चुनौतियों का अंबार है, उसी से तो हमारे हौसलों की मीनार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का श्रृंगार है, यही तो मां भारती का श्रृंगार है। आइए एक बार पुनः करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिवादन करें, अपनी कृतज्ञता उन तक पहुंचाएं।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से निवेदन, गिरती मानव सेवा बनकर बहती है। दिव्य सज्जनों, इन अद्भुत पलों के बीच आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से निवेदन, गिरती मानव सेवा बनकर बहती है। दिव्य सज्जनों,